Good evening, everybody. Welcome to this important session on hallmarking, which will bring in the much needed trust and transparency in the gem and jewelry market. We have an eminent panel to discuss this. Mr. Ashish Pete, partner Vaman Hari Pete, Mr. Nitin Khandelwal, former GJCA chairman, Khandelwal Jewelers, All India Gems and Jewelry Council, Mr. Chetan Bhandari, treasurer, Indian Association of Hallmarking Center, Mr. James Dose, MD, CGR Metal Alloys Private Limited. To moderate this session, we have Mr. Chirag Sheth, Principal Consultant, South Asia Metals Focus. Over to you, Mr. Sheth. Thank you very much. Thank you very much. It is indeed a pleasure and an honor to moderate such an important topic, hallmarking, which a lot of people are passionate about, and I hope that I have a great discussion with my panelists. Hallmarking was first introduced in India, a couple of decades ago, and over the last few years, we've been talking about compulsory hallmarking. We've been talking about implementation of hallmarking across the country, and there are various other issues that come with the hallmarking. And hopefully, we want to discuss these in our discussion. Ashish sir, let me come to you first. As I said, hallmarking has been here for 2 decades now. Over the last 3 or 4 years, we've been talking about compulsory hallmarking. Numerous trade bodies have had representation. There are various committees which have been formed in. Despite doing all these things, there are still certain amount of issues which are there. Why is it that after spending so many years in deliberation with the government, between the trade bodies, hallmarking associations, we've still not achieved a common ground? Good evening, everyone. I hope I'm audible. Yes. And thanks for having me on today's panel. You're absolutely right, Chirag bhai, that it's almost 20 years now since the introduction of hallmarking scheme in India. But we have to realize that India is as good as 25, 28 nations put together. So getting anything right down to the smallest village to the smallest jeweler is always going to be an issue. But I can say that in major metro cities or bigger markets or bigger players, hallmarking has already percolated to the limit. Like everyone, most of them are doing 100% hallmarking. But as you go down to tier 2, tier 3, and tier 4, there the customer demands are also very peculiar. I was just giving you an example, like sometimes a customer in a small town comes to a jeweler and says, मुझे जमाई को अंगूठी देना है, मेरा 10,000 का बजट है, उसमें आप मेरे को बिठा के दे दो. So in such a cases, then because of the demands, the jewelers use different carats like 20 carat, 21 carat, and things like that. So although most of the country has moved towards 100% hallmarking, but when you talk of mandatory hallmarking, then the ballgame changes totally. Even a small jeweler who is carrying 10 pieces, once the mandatory hallmarking comes in, his business is at stake. So these are two different things, having prevalent hallmarking and having mandatory hallmarking. There is a vast difference we need to understand. Okay. नितिन भाई, आशीष जी ने बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट कहा कि आप जब मैंडेटरी हॉलमार्किंग कह लेते हो तो एक बहुत ही अलग बात हो जाती है, और आप स्पेशली टियर 2 टियर 3 टाउन से हो जहां पे ऑब्वियसली गोल्ड का एक बहुत ही अलग महत्व है. आप इस जो हॉलमार्किंग का जो रेगुलेशन है, आप उसको किस तरह से देखते हैं? देखो, कोई भी रेगुलेशन वेलकम तो हो ही नहीं सकता है, आप किसी को कंपेल कर नहीं सकते. और रेगुलेशन के 1991 में जब रेगुलेशन से बाहर निकले, तब उसके बाद तो ये बिजनेस बढ़ा है, फला है, फूला है. उसके पहले तो ये बहुत एक नैरो लाइन के अंदर चल रहा था और कंजर्वेटिव बिजनेस था. तो पहली बात तो लाइसेंस, कंपल्शन, फोर्स, ये तो किसी भी लॉ में चलता नहीं है. और खास करके हमारे मोदी जी जो है, वो तो सारी चीजें एक प्रकार से फ्री कर रहे हैं. जब वर्ल्ड के अंदर फ्री कर दिया है तो यहाँ होना चाहिए, लेकिन प्रमोट होना चाहिए कि हॉलमार्किंग ज्वेलरी लोगों ने सेल करना चाहिए. लोगों को भी प्रमोट करना चाहिए कि हॉलमार्किंग ज्वेलरी बाय करो, जैसा आईएसओ की आती है. तो हॉलमार्किंग आना चाहिए, बन मैंडेटरी, कंपलसरी, फोर्सफुली, रेगुलेटरी, ये वर्ड तो बहुत मुश्किल है करना. और खास करके मैं जिस सिटी को बिलोंग करता हूँ, छोटे छोटे देहात में अगर देखेंगे तो कारागिर, गिराइक सामने बैठा होता है, वो चीज बनाते हैं, कारागिर के हाथ में साइज में डाल के देखते हैं, हाथों हाथ डिलीवरी देते हैं. आज भी चप्पल जूते सामने बैठ के बना के देने की सिस्टम देहातों में है.
हम सब बड़े सिटी में रहते हैं, हमको पता नहीं है, सो मेनी चीज वो कस्टमाइज करके सामने बना के दे देते हैं। बट नितिन भाई, एक स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो तो हमेशा कंज्यूमर के फेवर में होता है। तो क्योंकि सब चीजों में आज स्टैंडर्डाइजेशन आते जा रहे हैं, तो ज्वेलरी इंडस्ट्री को क्या ऐसा पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जो स्टैंडर्डाइजेशन के, मैं कहूंगा, खिलाफ नहीं है, बट और ज्यादा टाइम चाहती है? देखो, ये जो इंडस्ट्री है ना, ये अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है। अब इसके अंदर लोग ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, लेकिन एक रात में बैठ के ओवर द नाइट अगर बोलेंगे ऑर्गेनाइज हो जाओ, और जो कारागिर है वो सेल्समैन, वो अपना ज्वेलरी भी कर रहा है और कारागिरी भी कर रहा है, अब इसके अंदर क्लैरिटी नहीं आएंगी। अब कारागिर माल बना के तैयार रख रहा है और वो अबाउट टू डिलीवर्ड है, अगर उसी समय हॉलमार्किंग वाले आएंगे कि विदाउट हॉलमार्किंग तुमने कैसा रखा, उसको तो डिलीवरी ले जाके देना है, उसमें से एक दो पीस वो सेल भी करता है, तो क्या हॉलमार्किंग करेगा? उसका हॉलमार्किंग मैं सेल नहीं कर सकता, और मेरा हॉलमार्किंग मैं उसको अलाउ नहीं करूंगा करना, क्योंकि मैं मेरे पास से लूंगा फिर हॉलमार्किंग को दूंगा। तो मुझे एक सिंपल सजेशन, आपने जो आशीष से क्वेश्चन किया था उसका मुझे आंसर देने की इच्छा है केवल एक 30 सेकंड में, कि जब तक कि हम पूरे इकोसिस्टम, पूरी वैल्यू चेन पूरी हम बैठ के एक जगह सॉल्व नहीं करेंगे, मेरी प्रॉब्लम, तेरी प्रॉब्लम, इसकी प्रॉब्लम, हम चाहते हॉलमार्किंग है, हम चाहते स्टैंडर्ड बढ़े, हम चाहते कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़े, हम चाहते कि वियना कन्वेंशन से लेके जो भी प्रोमिसेस हमने करी है वर्ल्ड को वो पूरी हो, लेकिन एक बार भी अगर हम पूरी वैल्यू चेन साथ में नहीं बैठेंगी तो ये हो नहीं सकता। और वो करने के लिए एज ए पेरेंट बॉडी, एज ए एपेक्स बॉडी, हमारे जो कन्वेनर है आशीष, ये पूरी मीटिंग में उनके भी आप में आपको प्रॉमिस करता है कि हम एक जगह बैठ के अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, जब तक के सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे हम मीटिंग छोड़ के नहीं जाएंगे, तो 100% इसमें से सॉल्यूशन निकलेगा। James sir, if I could come to you, before asking you question, नितिन भाई ने एक चीज कही, वियना कन्वेंशन. If you could, help our, listeners explain what exactly is Vienna Convention and what are these norms that India must follow. If you could, explain this briefly, that would be excellent. I think you are on mute. Yeah, good evening, friends. Vienna Convention is the international protocol for hallmarking, where there is a common control mark, CCM, which is the fifth mark. In India, in the Indian hallmarking scheme, there are only 4 marks. In addition to the 4th one, we put the 5th mark. That is a Vienna Convention common control mark. To be permitted for the country, not just for a jeweler, the country India has to join the Vienna Convention on hallmarking, for which the country has to go through so many sittings and what you call visitor. First, you have to be a visitor. Then there's a long process. It takes around 7 to 8 years time for India to join the Vienna Convention. BASF, they have already started the process. Unfortunately, it is going very slow because probably there is not much of pressure from the jewelry industry. So that is about it. The process is going on, but a little bit slow. Then coming to the scheme, it is the moment India joins the Vienna Convention on hallmarking, those hallmarking centers in India which are empaneled by the Vienna Convention will be permitted to mark the 5th mark. So for qualifying for the 5th marking facility, you need to have your laboratory systems at par with the best in the world, which is the IS 17025 2017 version. That means, to put it simply, the laboratory has to be NABL accredited. There are around 20 refinery labs and another 5 independent laboratories in India which are conforming to that requirement. So the infrastructure is in place. It is just a matter of the country joining the Vienna Convention. Once we get that empanelment, then our goods, the goods exported from India, will be accepted without further testing in the countries abroad. That is the main advantage. So it will be treated at par with coming from the other countries without any further testing. It adds to the credibility of the export rate. Yeah, thank you. Right. This question is actually to Chetan Bhai and James, sir, to both of you all. You heard the jewelers, what is their view on compulsory hallmarking? How is the association looking at compulsory hallmarking? We often hear that the number of hallmarking centers are less. There is more time which is required. There is no common ground at this moment between the jewelry community, the manufacturing community, and the hallmarking community. Chetan Bhai, if you could come first, and then maybe James sir, if you could come in. Yeah, basically hallmarking when started in 2000, I agree, there were very few hallmarking centers and registered jewelers also. The scheme works for the consumer in a way that the jeweler has to be a registered jeweler.
with the Bureau of Indian Standards, and the hallmarking center has to be a licensee of Bureau of Indian Standards. So what has happened or what has evolved during this 20 years is the hallmarking center graph. If you see, they have risen up like gradually from 100, 200, 300, 500 to 900. Basically, right now we are sitting at 925 hallmarking centers plus minus 5. And if you see the graph of jewelers, like the graph of jewelers is not that at par with the number of hallmarking centers opening, because 25,000 hallmarking centers, if you check at the BIS site, there are only like less than 26,000 registered jewelers. So basically, to cater to 26,000 registered jewelers, the hallmarking center or the current hallmarking center setup is way adequate to cover everything. Like now, the government, what is doing is like the hallmarking scheme in the last 15, the first 15 years was not picking up that great, for the reasons that I think, for me, my personal view is that we were not taking consumers seriously. For example, like gold is an asset class. Basically, it is a one form of investment. अगर आप आपका पैसा कोई एफडीए, फॉर एग्जांपल एफडीए, कोई बैंक में डालना ज्यादा पसंद करोगे कि कोई XYZ कंपनी है जो आपको फॉल्स प्रॉमिसेस देगा और लाइक फ्लाई बाय नाइट टिकल जाएगा? तो सेम तरीके से गोल्ड भी एक इन्वेस्टमेंट है जिसमें ट्रस्ट चाहिए लोगों को कि हाँ मेरे को सही तरह का सोना मिल रहा है. सो बेसिकली गोल्ड को स्टैंडर्ड बनाने के लिए 100% कंज्यूमर को कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी है. तो आई वुड से कि लाइक जैसे कि आप 3 स्टैंडर्ड से शुरू करेंगे, विच इज the 3 standards. Like what is a standard? Standard is a world's common language. It's not India's common language. So the standard has to be acceptable by throughout the world or all across the world. What Vienna Convention says that to have the 5th mark, we have to follow or we have to stick to certain things. Like in automobiles, you have to stick to pollution emission norms. So because or safety norms है आपके, because it's life related. तो ये भी एक investment class है. तो आई वुड से कि वो उसके लिए एक स्टैंडर्ड की शुरुआत हुई है. आई वुड से लास्ट 4-5 years में काफी एक्टिव तरीके से फॉर कंज्यूमर इट्स हैपनिंग. कंज्यूमर खुद कंफ्यूज्ड है, बिकॉज एज अ हॉलमार्किंग सेंटर मेरे को कोई इशू नहीं है कि आप मेरे को 50 प्योरिटी ला के दो, मैं सारी आपको एक्यूरेट प्योरिटी निकाल के दे दूंगा. वी हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर, बट कंज्यूमर इसमें काफी कंफ्यूज हो रहा है. So basically, it's a good step that a standard, a compulsory hallmarking era has finally stepped in for the consumers to start with. Yes, it will start with 22 carat, 18 carat, 14 carat. So that consumer also knows कि हाँ भाई ये मार्केट में हॉलमार्किंग बोले तो ये 3 चीजें तो अपने को पक्का है कि चलो हॉलमार्क है तो हम लोग समझा सकते हैं ये चीज. एंड with the advent of technology, like अभी पेटे सर का एक अच्छा एग्जांपल था कि यहाँ का बहुत हेट्रोजीनियस मार्केट है. बेसिकली अलग अलग टाइप की डिमांड्स आती है. तो आपको कैसा है कि 10,000 की बजट में भी चेंज है. बट आई वुड से कि लास्ट 5 years अगर आप टेक्नोलॉजी देखोगे तो आपको होलो ज्वेलरी मिल रही है, लाइट वेट. सो बेसिकली काफी सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी आए जो आपको अलग कैरेटेज में अलग चीज CZ आया है टू रिप्लेस डायमंड. सो यू गेट वेरी मच टेक्नोलॉजिकली बैक जो कास्टेड ज्वेलरी है वो काफी अभी आ गई है इंडियन मार्केट में. तो वो सारे टेक केयर कर लेगी ये चीज में. एंड आई वुड से कि इट्स अ पॉजिटिव मूव. आई वेलकम दिस थिंग. इट हैज टू हैपन एंड इट्स ऑलरेडी ओवरड्यू. James sir, how do you look at it? It is often said that the number of hallmarking centers are less. We still not reached common ground. What do you think has to be done as association of hallmarking? See, the jewelers demand for more hallmarking centers, or the absence of their complaint about not having adequate number of hallmarking centers is basically based out of their inconvenience or their problem of botheration of taking the jewelry to faraway places. In many medium or small shops, only apart from the owner, there will be only 2-3 staff available in the jewelry shop. But if you look at it, sorry, but if you look at it, isn't that a genuine, I would say issue? I'm coming to that point. Yeah. See, to be financially viable, to run a hallmarking center, a center needs around 500 pieces per day. But if you go to smaller towns, there are not that kind of volumes. Even in many district headquarters, that volumes are not there. So there may be 10 or 20 shops in a district headquarters, but their volumes are not sufficient for a hallmarking center. So financial viability is one thing that is putting a hurdle on setting up new hallmarking centers. Whereas because of the high value of the item and the threat and risk of carrying gold, jewelers are demanding more hallmarking centers. It's a chicken and egg situation. As and when the volumes pick up, naturally centers will come up, because you need around 450-60 lakhs of rupees for setting up a hallmarking center, and then you need another 2 lakhs rupees of running expenses for your running expenses. So when that kind of volumes and revenue are there, definitely more hallmarking centers will come up. It's just a vicious cycle of low demand. It's a vicious cycle. Somewhere it has to break,
and then we feel that in the mandatory hallmarking regime, the cycle will break. नितिन भाई, जैसे Chirag bhai, can I add something to what Mr. Joe said? Please. Yeah, because one more good thing which the government has taken care is, like, even though there are no hallmarking centers in say small towns or villages, now if a registered jeweler is allowed to purchase hallmark jewelry from a wholesaler or a manufacturer, so it's not necessary for him that उसको वहीं पे hallmark कराना है. दूसरा एस्पेक्ट जो गवर्नमेंट ने टेक केयर किया है वो ये है कि अगर आप छोटे टाउन में सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग, आप बोलते हैं कि लोकली काफी चीजें बनती है, बट आप देखने जाओगे तो साइमल्टेनियसली लोकली बहुत सारी चीजें ज्वेलरी रिलेटेड नहीं है. जैसे बुलियन डीलर्स आपको हर गांव में नहीं मिलेंगे, तो दे हैव टू ट्रेवल टू सम सिटी, सम टाउन वेयर आई एम श्योर द हॉलमार्किंग सेंटर विल बी देयर. सो आई डोंट थिंक एनी हर्डल इन दिस पार्ट कि ये कंपलसरी में कोई हिचानी चाहिए ये चीज को लेके. नितिन भाई, जैसे जेम्स सर ने कहा, चेतन भाई ने कहा कि अगर हम वैसे देखें तो हॉलमार्किंग एसोसिएशन का कहना है कि नंबर ऑफ हॉलमार्किंग सेंटर्स इनफ है, बराबर बात है. दूसरी तरफ हम ये भी बात देखें कि मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया में हो रहा है वो तो 10 से 12 सिटीज में हो रहा है, वही होलसेल हब है, वही मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो फिर दिक्कत कहां पे? किसको मुझे जवाब देना है चिराग? नितिन भाई, आप अगर उसको जवाब. मैं तो दोनों की हॉलमार्किंग सेंटर के दोनों भी जो मेरे कलीग हैं, मैं उनके दोनों के बात से बिल्कुल ही सहमत नहीं हूं, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी में अगर आप तालुका प्लेसेस में जाएंगे, तालुका से नीचे देहात जाएंगे, तो जितनी ज्यादा ज्वेलरी देहात और तालुका में होती है, उसका एक सिंपल रीजन बताता हूँ. इट्स नॉट डिविटिंग द सब्जेक्ट, क्योंकि शहर के अंदर तो उनके पास में शेयर मार्केट है, प्रॉपर्टी मार्केट है, डेरिवेटिव्स है, वो लोग दुनिया भर के ETF है, सब कर लेते हैं. छोटे देहात में तो पैसा केवल 24 कैरेट की ज्वेलरी बनाना, पहनना, साल में 3 बार वही ज्वेलरी को बेचना, फिर लेना. जब सीड सोइंग करना होता है तो ज्वेलरी बेचने आते हैं, जब उनको क्रॉप लेना है तो वो लेने आते हैं, जब पैसा आ जाता है तो ज्वेलरी लेते हैं, और वही गांव में लेते हैं, वही बेचते हैं. तो ये कोई मैन्युफैक्चरर से लेते नहीं है. आप अगर मैन्युफैक्चरर से पकड़ेंगे तो वो नहीं होता. जो असली माल जो सेल हो रहा है वो सेल्फ बना रहे और सेल्फ सेल कर रहे हैं. मैं आपको ऐसे 50 शोरूम के नाम दूंगा कि सामने शोरूम है और अंदर उनके कारागिर काम कर रहे हैं, बनाया चीज और दे दिया, और उनका स्टैंडर्ड कोई नीचे नहीं है, क्योंकि वो उनके प्रॉमिस को पूरा कर रहे हैं. वो बेच भी रहे, बदल भी रहे, एक्सचेंज भी कर रहे हैं. तो हॉलमार्क कराएंगे से स्टैंडर्ड होगा ये बात नहीं है. दूसरा, मैन्युफैक्चरर लेके जाना, एक अकोट जैसा मेरे अकोला से 90 किलोमीटर है, अकोला से, वो वहां का ज्वेलर्स इतना बढ़िया काम कर रहा है, मेरे शरीर की प्योरिटी बेच रहा है, वो अकोला आएगा, हॉलमार्क करेगा, फिर गिराक को डिलीवरी देगा. तो जैसा जेम्स सर ने बताया कि उनको कॉस्टिंग का प्रॉब्लम है, ऐसा उसको भी तो कॉस्टिंग का प्रॉब्लम है ना. 4 चीज बनाया, लेकर आएगा, हॉलमार्क करेगा, वो बोलेंगे अभी टाइम नहीं है, शाम तक दूंगा, कल तक वापस जाएंगे. तो ये पॉसिबल नहीं होने वाला. नहीं, मैंडेटरी कंपलसरी इंडिया में चलने वाला नहीं है उसमें. बट उसमें ये भी तो सर फाइनेंशियली ये भी तो नितिन भाई प्रॉब्लम है कि छोटी जगह पे हॉलमार्किंग सेंटर भी वायबल नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने पहले जीजेसी से एक सजेशन दिया था कि इसको फेज मैनर में इंप्लीमेंट करना चाहिए. पहले इसको मेट्रो से स्टार्ट करें, फिर सेमी मेट्रो में आए, जो बिग मेट्रोज है बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, वहां पे आ जाए, फिर उसके बाद में कानपुर, रायपुर, नागपुर जैसी जगह में आए, तो धीरे धीरे वो होगा. अभी एक ही रात में अगर बोलेंगे तो कियोस हो जाएगा. मैं आपको एक बात बताता हूँ चिराग भाई, हिंदुस्तान में 6 लाख देहात और गांव मिला के है, ये सरकारी आंकड़ा है, 6 लाख. अब आप इमेजिन करिए कि 6 लाख लोगों को आप एक दिन के अंदर 6 लाख, कोई भी ऐसी सिटी नहीं है जहां पे कोई कारागिरी या फिर वहां पे कोई ज्वेलर्स नहीं है, कहीं 5 है, कहीं 10 है, 15 है, मतलब 10 से 15 लाख ज्वेलर्स है यहाँ पे. ऑथेंटिकल फिगर किसी के पास नहीं है, लेकिन 6 लाख सिटी और देहात को कोई डिनाई नहीं कर सकता, उनके पिन कोड्स है. तो उतनी जगह पे तो ज्वेलर्स है, ऐसा कोई जगह है जहां ज्वेलर्स नहीं है. इतने लोगों को लाइसेंस के अंदर लाना, रजिस्ट्रेशन में लाना, उसको कंट्रोल करना, उन लोगों ने 100% हॉलमार्किंग बेचना, ये पॉसिबल ही होने वाला नहीं है. और फिर मैंने जो आपको प्रॉब्लम बताई है कि हाथों हाथ लेना, हाथों हाथ बेचना, बदलना, छोटा बड़ा करना, एक गिराइक लेने आता, दूसरा गिराइक उसको हाथों हाथ दूसरा ले लेता, ये जो इकोसिस्टम पूरा बना हुआ है इतने साल से सर्वाइव होने के लिए, तो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा. हॉलमार्किंग होना चाहिए, लेकिन किसी की गर्दन पकड़ के नहीं होना चाहिए वो. चिराग भाई, I don't agree to what नितिन भाई saying, because ये हॉलमार्किंग 20 साल से है, और आई थिंक एक भी ज्वेलर ऐसा नहीं है इंडिया में जिसको हॉलमार्किंग के बारे में नहीं पता. और गवर्नमेंट ने 1 साल का टाइम दिया है, रातों रात कुछ नहीं कर रही है गवर्नमेंट. 1 साल का टाइम दिया है आपको कन्वर्ट करने को, और लॉकडाउन में 4 महीने का एक्सटेंशन भी दिया है सर आपको. सर आप बोल रहे हैं 22 कैरेट की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ 24 कैरेट की, मेरा आज भी 40% सेल 24 कैरेट का है. मैं आपको 50 शोरूम के नाम देता हूँ अकेले महाराष्ट्र में, साइजेबल. सर स्टैंडर्ड की शुरुआत है, हम लोग को दुनिया को देख के चलना है अभी फिलहाल. चेतन भाई एक मिनट देखिए, जो नितिन भाई ने कहा वो भी बात एक सही है कि अगर हम छोटे छोटे गांव में देखें, जैसे अगर आपको याद हो तो गिर में एक ही इलेक्शन बूथ है,
क्योंकि एक ही जन है, उनके लिए वोट करने के लिए एक फैसिलिटी अवेलेबल है, राइट? तो ये भी तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इतने बड़े डाइवर्स कंट्री में जहां पे आज भी एजुकेशन लेवल की बहुत बड़ी दिक्कत है, तो एक वन सिंगल फेज में क्यों इंप्लीमेंटेशन करना है? ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत ही वायबल सवाल सर है। इसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ कि ये बेसिकली एनी लाइसेंसी ज्वेलर, आप गिर की बात करें, अगर गिर में कोई ज्वेलर बीआईएस का लाइसेंस लेता है तो वो बॉम्बे के कोई भी लाइसेंस ज्वेलर से परचेस कर सकता है, और हम लोग बॉम्बे में बैठ के वो गिर के ज्वेलर का अगर हमको वो मैन्युफैक्चरर या डीलर या होलसेलर हमको उनका लाइसेंस फॉरवर्ड कर देता है तो हम लोग उनकी हॉलमार्किंग कर सकते हैं। दिस इज देयर इन द नॉ। तो ये एक जस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया जा रहा है कि हम लोग गांव के ज्वेलर जो रजिस्टर्ड है बीआईएस से, हम लोग उनके हॉलमार्किंग नहीं कर सकते। आज की तारीख में बहुत सारे खेड़े गांव में जैसे बोल रहे हैं कि रेप्यूटेड ज्वेलर्स जो जिन्होंने बीआईएस लाइसेंस लेके रखा है, तो आप उनको जाके पूछिए कि वो कैसे करवा रहे हैं हॉलमार्किंग, बड़ी आसानी से करवा रहे हैं। बिकॉज ये चेन, ये सप्लाई चेन जो है ज्वेलरी का बहुत ही स्पेसिफिक है, बहुत ही फिक्स्ड मार्केट में है। ये ऐसा नहीं कि ये एग्रीकल्चर की तरह के छोटे छोटे हर खेतों में से आ रहा है, ऐसा नहीं है वो। सिद्धार्थ भाई, वो लोग जो I think बॉम्बे ये से एक माल wrong परचेस notion कर चल रहे रहा हैं है ज्वेलरी, market में। वो हॉलमार्क करा के ले रहे हैं, जो लोकल बना रहे हैं उसको हॉलमार्किंग सेंटर पे लेके नहीं जा रहे हैं, और ये ना तो फ्यूचर में होने वाला है। James अगर sir, वो बना रहा है, do you want to come in on this? Do you want to come in on this point? No, I just want to add a point that the government has been discussing about mandatory hallmarking since 2011 onwards. Yeah. Those days, the government was announcing something like a phased three-tier Yeah. phased rollout of the hallmarking scheme, starting from 7 metro cities in the country, then district headquarters, then all over India. Yeah. Even now, because of all these practical problems, because the main hurdle what we see is that out of the 3 lakh jewelers, only 84,000 jewelers have taken the the GST registration. Okay, without GST registration, you can take BS license. That is not an issue. But from 30,000 to 3 lakh, putting all the jewelers into the hallmarking BS registration is a tedious job. There may be some problems. So I would suggest, and the hallmarking centers also have suggested that it is better to have a phased rollout for the convenience of all the stakeholders. आशीष भाई, जैसे जेम्स जी ने कहा कि हम हमेशा कहते हैं हमारे यहाँ 3, 3.5, 4 लाख ज्वेलर है, बराबर है, बट आज जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो सिर्फ 80,000 ज्वेलर ने लिया और 23,000 ज्वेलर ने ही हॉलमार्किंग का रजिस्ट्रेशन लिया है। अब इस चीज को कैसे देखती है आप कि क्या बाकी के जो ज्वेलर है, क्या वो एक्चुअली सोना बेच रहे हैं कि ज्यादा मनी लेंडर है, और हम इस चीज के ऊपर बहुत ही ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं? Interior towns में there are jewelers who are doing both the things, money lending as well as this. But in the major towns, people are doing genuine jewelry business, are selling jewelry and bullion. So there is no ambiguity in bigger towns. But in smaller towns, जैसे कहा उनका बिजनेस मॉडल ही वैसा होता है, और जैसे नितिन भाई ने राइटली कहा कि सोने की तरफ उनका देखने का जो रुझान है वही अलग है. They look at it as anytime money. तो उनके लिए वो मनी लेंडिंग एंड ज्वेलरी एंड ज्वेलर बिकम्स अ सिनोनिमस थिंग. तो इन स्मॉलर टाउन्स इट इज synonymous, but in bigger towns it is purely jewelry business that is being done. I'll come back to what Chetan bhai was saying. They were saying that small town से बॉम्बे या बड़े जगह पे जाके हॉलमार्किंग हो सकता है. चेतन भाई, आज की तारीख में लॉजिस्टिक्स इतना डेवलप हुआ है क्या कि इंडिया के स्मॉलेस्ट टाउन पे रीजनेबल कॉस्ट में, बोल रहा हूँ मैं, रीजनेबल कॉस्ट में माल जाता है. तो एक अंगूठे का 1,000 रुपए मेकिंग चार्जेस है और 1,000 रुपया लॉजिस्टिक चार्जेस लगता है. तो जो स्मॉलर टाउन में जो कस्टमर होता है, ही इज मच मोर कॉस्ट अलर्ट, सो टू से, एंड ही वांट्स हिज प्राइस सेंसिटिव. तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. जो उनके लोकल, जैसे महाराष्ट्र में हर एक शादी में 24 कैरेट का एक चिताक करके एक नेक पीस आता है, वो तो देना ही पड़ता है पर्टिकुलर कम्युनिटी में, 24 कैरेट का ना. वो मैं बॉम्बे में मैन्युफैक्चर करने जाता हूँ तो बनता नहीं हुआ है, रिजेक्ट कर देते हैं. वो कहते हैं हमारा लोकल तरीके से बनता है, वही चाहिए. सो लोकल मैन्युफैक्चरिंग इज रिक्वायर्ड, इट कैनॉट बी टोटली एलिमिनेटेड. एंड अगर आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग टोटली एलिमिनेट करते हो तो छोटे गांव का कारीगर ने क्या करने का, उसने खेती बाड़ी करने का. फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स वो कारीगरी कर रहा है, लोकल कारीगर बैठ के, उसको बिकॉज देयर इज समथिंग, सम लॉ कमिंग इन, उसका काम धंधा बंद हो जाएगा. हाउ राइट इज दैट?
चेतन भाई actually- कोल्हापुर का आशीष- चेतन भाई आशीष- कोल्हापुर का आशीष- 250 ग्राम का कड़ा बनता है, 250 भाई, ग्राम एक का मिनट। तोड़ा। आशीष सर, आई थिंक मेरा चेतन भाई। मेरा हाँ Chetan bhai, 1 minute. Let me just ask you one question. Adding to this, what Ashish ji said. अगर हम बाकी बहुत सारे हमारे नेबरिंग कंट्रीज भी देखें या जो कंट्रीज हमारे रीजन में है, ठीक है, अगर हम देख लीजिए सर, वियतनाम देख लीजिए, वहां पे 24 कैरेट की ज्वेलरी बहुत ज्यादा बिकती है। अगर हम थाईलैंड देखिए तो 965 की ज्वेलरी वहां पे बिकती है। हम नेपाल चले जाए तो 50% जो नेपाल की ज्वेलरी है वो 24 कैरेट है। तो ऐसा ये क्यों है कि हमें सब, आप जैसे इंडोनेशिया देख लीजिए तो 9 कैरेट से लेके 9, 14, 12, 18, 24 सारी ज्वेलरी बिकती है। तो इस चीज को 3 सिर्फ स्टैंडर्डाइज में लाके फायदा क्या है? अगर कोई, ये एक फ्री नेशन है, अगर कोई 24 कैरेट की कंज्यूम करना है तो 24 कैरेट की कंज्यूम करेगा। जब तक मुझे प्योर गोल्ड मिल रहा है तब तक प्रॉब्लम क्या है फ्रॉम अ गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एसोसिएशन ये कर रही है, बट जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड। चेतन भाई मुझे 1 सेकंड अलाउड किए, 1 सेकंड खाली इसी क्वेश्चन के अंदर। 250 ग्राम का शिंदेशाही तोड़ा कोल्हापुर में बनता है, आज भी अकोला में नहीं बनता है 250 ग्राम का, वो 24 कैरेट के नीचे बनता ही नहीं है। और ये वामनरी पेठे के 3 ग्रुप के अंदर और वहां पे पीएन गाडगिल से लेके हमारे यहाँ सबके यहाँ पे सेल होता है। 250 ग्राम सोने का कड़ा आपने सुना नहीं होगा, बिगर 24 कैरेट के बन भी नहीं सकता। एम आई राइट आशीष? तो वो ट्रेडिशन कैसे बंद हो जाएगा? वो 300-400 साल शिवाजी महाराज के जमाने से बन रही वो 24 कैरेट की ज्वेलरी कोल्हापुरी साज 23 है। और 24 दोनों में ही बनता है। हाँ, वो 22 में बनता ही नहीं है वो। सर अब बोलिए चेतन भाई, Okay, मैं yeah. सही समझे। या आशीष सर, सॉरी, मीन्स मेरा जो कम्युनिकेशन जो था वो विलेज को लेके वो थोड़ा अपने अलग तरीके से बताया, बट व्हाट आई वांटेड टू से इज लॉजिस्टिकली बुलियन वाले जो बैठे हैं आज शहर में बैठे, यू एग्री सर कि आज वो छोटे छोटे गांव में तो नहीं है, तो मैं नहीं कहता उनको कि आप स्पेसिफिकली हॉलमार्किंग करने, आपकी कॉस्ट बढ़ाने आप वहां पे जाइए। आप दूसरे काम के लिए रेगुलर जाते हो तो उसी के साथ वो सारा काम होता है। अभी बॉम्बे भी काफी लोग परचेजिंग के लिए आते हैं तो काफी चीज वहीं पे ऑर्डर देते हैं, वहीं से हॉलमार्क करा के पार्सल करवा देते हैं वो। सो आई वाज रिफरिंग टू दैट टाइप ऑफ लॉजिस्टिक्स बेसिकली, नॉट अ स्पेसिफिक लॉजिस्टिक्स। बट ग्राउंड रियलिटी छोटे गांव में ऐसा है कि बाहर जाके बड़ी रिफाइनरी से 995 का बार बहुत कम लेता है, बिकॉज लोकल गांव की Local इकोनॉमी use। में रिसाइकल गोल्ड मैक्सिमम होता है exactly. और वही सोना यूज करके वो नया ज्वेलरी बना के बेचता है। जैसे नितिन भाई ने कहा पीछे उसका फैक्ट्री है और आगे दुकान है, तो दैट वे द रिसाइकल गोल्ड इज अ बिगर पोर्शन ऑफ द गोल्ड इकोनॉमी इन स्मॉलर सेंटर्स, तो उसमें वो तकलीफ वाला हो जाता है। और सेंडिंग अक्रॉस उसको मैं कितना माल भेज रहा हूँ, ला रहा हूँ, छोटे गांव में ये न्यूज ओपन होना भी रिस्की हो जाता है। नहीं, इनका रोज पार्सल आ रहा है, जा रहा है, वो Right, बिकम्स इशू। नहीं, Same, sir. we as association level had done a analysis और हम लोग ने डेटा कलेक्ट किया है डिस्ट्रिक्ट वाइज कि कितने डिस्ट्रिक्ट वाइज रजिस्टर्ड ज्वेलर है और कितने डिस्ट्रिक्ट वाइज हॉलमार्किंग सेंटर्स है। तो एज ऑफ नाउ इट इज एडिक्वेटली कवर्ड। हाँ, जैसे जैसे आपका अभी आप बोल रहे हो कि गांव में जहाँ पे ऑफटेक अच्छा है ज्वेलरी का, जहाँ पे रिसाइकल्ड गोल्ड कस्टमर को ज्यादा सेल हो रहा है, तो आई एम 100% श्योर कि कोई ना कोई वहाँ पे हॉलमार्किंग सेंटर डालेगा ही, लाइक अगर उसको वहाँ पे इसका वायबिलिटी बैठ रहा है तो, एंड आई एम श्योर इट विल बी वायबल फॉर देम ओवर देयर इफ द ऑफटेक इज सो गुड ओवर देयर एज यू से। James sir, I wanted to ask you this question, to you sitting in Kerala, one of the largest gold hubs. What is the logic, where while, consumer, if it wants a 23 or a 24 carat jewelry, why is there restriction on manufacturers or sellers to sell this jewelry? See, when the scheme was started in 2000, there were 9 carats were permitted. But the government, the BAS, based on the data received from the hallmarking centers, the monthly data hallmarking centers are sending to BAS. BAS has found that 99% of the jewelry hallmarked in the country is in 22 carat category. And all the other 9 caratages, other 8 caratages are hardly used in any of the cities. Probably for various reasons, like Nitin Bhai has said, in Akola or some specific area, in the interiors, there may be 23, 24 carat, but that jewelry is not sent to Bombay for hallmarking. Yeah, And but actually the so that's what I'm saying. It could be Yeah. because that is out of the purview of that survey. Yeah, see, BAS and the ministry and the MDT and Standard Committee take decisions based on the data available with them. Repeatedly, these committees, the BAS and the ministry and the MDT committee has requested the Swarnakar Sangh, the various jewelry associations,
in various meetings that please, if at all you are having requirement for other caratages, please submit the data. If there are sufficient volumes, we have no problem. That request is still there. It is up to the jewelry associations to convince the BIS and the government with sufficient data, number one. Number two, the hallmarking centers, as far as we are concerned, we have absolutely no problem in hallmarking any of the caratages because the past 20 years, we have been handling all these different type of jewelry, including 24 carat, even though the volumes are very minuscule. We are all looking for business. If there is business in 23 carat, no problem. If there is business in 21 carat, no problem. We are welcome. We are more than happy to accept these type of assorted caratages. Right. But my understanding of the situation is that the ministry and the BIS is getting a lot of feedback from various consumer organizations. The consumer organizations have been raising the issue that the closed caratages like 20, 21, 22 caratages, they are often misleading the consumers in terms of 21 carat and 22 carat and 23 carat, sorry, 20, 21 and 22 are sold at the price of 22 carat. There is no price difference between 20 and 22 carat. Similarly, 23 carat and 24 carat is sold at the price of 24 carat. So these type of what you call problem areas for the consumer. I'm not saying cheating and all that, but it's a market practice. So this type of lacunas in consumer protection is there, and BIS and the ministry is aware of it. So all of us know that in the villages, people are not familiar with the 916 or 750. They simply know 22 carat, 24 carat, like that. So the government decided that there shall be divergent caratages. जो बीच में नहीं आना है 20, 21, 22 निकालो इसके पहले let us concentrate on 18 carat, 22 carat and what you call 14, 18 and 22. And the ministers clearly mentioned at the time of announcing the mandatory hallmarking that along with the mandatory hallmarking, introduction of mandatory hallmarking, the jewelers shall display in their shop the 3 different prices for these 3 different caratages. So they are speaking or they are announcing these things based on some inputs from various organizations. So it is up to the jewelry associations to convince these authorities with supporting data about the requirement of multiple caratages, and hallmarking centers will be more than happy to support them. Thank you. आशीष भाई और नितिन भाई, दो चीजें जैसे जेम्स जी ने कहा कि दो सीधा सवाल है सर। एक चीज ये है कि ये कह रहे हैं कि सरकार ने तो कहा है कि हॉलमार्किंग एसोसिएशन और सरकार ने कहा है कि ज्वेलर्स आए और बताए कि 22 कैरेट 23 कैरेट इतना बिकता है, 24 कैरेट इतना बिकता है। तो एक चीज, और दूसरा जो जेम्स जी ने कहा कि ये बहुत ही आई वुड से सेंसिटिव चीज है कि 23 कैरेट को 24 कैरेट के भाव में बिक रहा है, या ये माल प्रैक्टिस नहीं हो सकता है, बट ये शायद ट्रांसपेरेंसी नहीं। आप ज्वेलर है, आप इस चीज को कैसे देखते हैं? चिराग भाई, sorry to use that word when I'm outspoken and straightway spoken. Sure. Totally misled by the hallmarking association previously, not this body. First, I'm clear. इन्होंने जो लेटर लिखा है गवर्नमेंट को, लेटर की कॉपी मैंने आपको भेजी है चिराग भाई दोपहर को 2:00 को, उसमें इन्होंने गवर्नमेंट को मिसलीड किया हुआ है। और मिसलीड गवर्नमेंट जो किसी से तो डाटा लेती है, इन्होंने बताया ऐसा होता है। Who are they to tell the government कि 23 का 22 बेचते, 22 का 24 बेचते? None their business. Their business is to get certified. ये ज्वेलरी इतना परसेंटेज है, ये हम क्या रेट में बेच रहे हैं? कल तुम कंपल्शन लाएंगे इस रेट में बेचना, फिर टपरी की चाय और 5 स्टार होटल की चाय भी एक रेट में होना चाहिए, फिर व्हाइट शर्ट जो रास्ते पे बिक रहा है और जो मॉल में बिक रहा है वो भी एक रेट में होना चाहिए, सारी लकड़ी भी एक रेट में होना चाहिए, सारी गाड़ियां 4 व्हीलर भी एक रेट में होना चाहिए। दिस इज नॉट गोइंग टू। हर एक का प्रोक्योरमेंट कॉस्ट अलग है, रखने का कॉस्ट अलग है, प्रॉफिट अलग है, पैकिंग मैटेरियल अलग है, स्टाफ अलग है, हर चीज अलग अलग है। तो नो वन कैन डिसाइड व्हाट रेट आई शुड सेल एंड व्हाट रेट यू शुड सेल करके, तो वो तो कोई आउट ऑफ क्वेश्चन है। अब रहा सवाल प्यूरिटी का, तो सर्वे जो है, सर्वे टोटल गलत है। कोई कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ने 24 कैरेट 23 कैरेट सेल नहीं होता बोला है। इन्होंने पंजाब में जाके कितने लोग दाढ़ी कटिंग करते उसका सर्वे किया है। सर पंजाब में सब सरदार है, दाढ़ी कटिंग करते नहीं, तो वहां का डाटा तो तुम्हारा गलत निकलेगा। तुम्हारा डाटा ही गलत है। तुम्हारे को डाटा करना चाहिए जहां पे लोग रोज दाढ़ी कटिंग करते हैं। अगर नाई की तुम्हारे को करना है तो तुम्हारे को, मैंने कल भी एग्जांपल दिया था, तुम्हारे को खाने की टेस्ट करना है, वड़ा पाव मिसल, अगर तुम कोल्हापुर में जाएंगे तो बोलेंगे हर आदमी रोज सवेरे वड़ा पाव मिसल खाता है। तुम पंजाब में जाके पूछेंगे तो बोलेंगे हमने नाम ही नहीं सुना है। तो सर्वे इज टोटली रॉन्ग। और 24 कैरेट की ज्वेलरी इसलिए सेल होती थी पहले से भी और अभी भी होती है, 23 और 22, 20 सब,
क्योंकि जिस सिटी के अंदर ये सेल होती है 20 कैरेट, उस सिटी में हॉलमार्किंग सेंटर नहीं थे, कंपल्शन नहीं था, इसलिए जितनी 2 टायर 3 टायर सिटी है उसमें 2 कैरेट बिकता है। एक तो वेट कम आना चाहिए और मजबूत होना चाहिए, कॉस्टिंग कम आना चाहिए, इसलिए 20 कैरेट, और दूसरा रीसेल एक्सचेंज मिलना चाहिए, इसलिए 23 और 24 कैरेट। तो सर्वे अभी सर नितिन भाई एकदम शॉर्ट में, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है? ज्वेलरी एसोसिएशन क्या करने वाले? क्योंकि जेम्स जी ने कहा कि ज्वेलरी एसोसिएशन ने अपना डेटा इकट्ठा कर लिया है। आई शुड नॉट से, बट आई एम टेलिंग यू, आज दोपहर को पूना एसोसिएशन के साथ मीटिंग हो गई है। फर्स्ट वीक ऑफ दी सितंबर के अंदर दे आर गोइंग टू शूट द फाइल, रिट पिटीशन वो लोग डाल रहे हैं, पूरा सर्वे कर दिया, टॉप का वकील उन्होंने लगा दिया। ये जरूरत ही आने को नहीं होना। हॉल मार्किंग सेंटर को मैं 10 साल से बोल रहा हूं कि आप बैठिए एसोसिएशन के साथ में, आप उनसे डिस्कस करिए और सर्वे कराइए, तो वो करते नहीं है, तो ये डिले होते जाने वाला है। 10-12 जगह से लोग मेरे को रोज फोन आते हैं, सब जगह पे रिट पिटीशन दाखिल हो रही है, क्योंकि ये पूरा लॉ गलत है। तो प्यूरिटी तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। मेरे को 17.5 कैरेट कस्टमर मांगेगा, एक आदमी अगर मांगेगा तो ये उसको अधिकार है मांगने का, और मेरे को बना के देने का अधिकार है 17.5 कैरेट भी। बट नितिन भाई, उसके अंदर फिर हम प्योरिटी कैसे असरटन करेंगे कि अगर सर सेव व्हाट यू सेल, सेल व्हाट यू से, ये कायदा है। तो कायदा तुम डिसाइड नहीं कर सकते। नो, बट देन हाउ डू वी डिसाइड दैट व्हाट इज सोल्ड इज एक्चुअल राइट? तो सर होल मार्किंग करा के बेच रहा है ना वो आदमी। देखिए चिराग भाई, आपको एक ब्रॉडर रेंज में बताऊं, जो लोग गलत बेचते थे ना वो बिजनेस में है ही नहीं। हर सिटी में 50% ज्वेलर्स गॉन आउट ऑफ द बिजनेस। अभी आप मनी लैंडिंग की बात कर रहे थे, मनी लैंडिंग का बिजनेस खत्म हो गया सर। 8% में बैंक रख रही है पूरी कोऑपरेटिव बैंक का पूरे इंडिया में। मुथूट फाइनेंस 10% में दे रहा है, कोई ज्वेलर्स एफोर्ड नहीं कर सकता 12% में बैंक से पैसे लेके देना। तो मनी लैंडिंग का बिजनेस तो पूरे इंडिया में डिसरप्ट हो रहा है ज्वेलर्स से पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट है। आरबीआई ने भी उस दिन बोला कि आप 90% उसके ऊपर लोन दे सकते हैं उसके ऊपर। आज तक कभी आरबीआई आया इस सेक्टर के अंदर टू प्रोटेक्ट दैट ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर। तो ये जो साहूकारी बिजनेस है, मनी लैंडिंग है, ये तो आने वाले 2-4 साल का किस्सा बचा है, क्योंकि रेट भी कम मिल रहा है और पैसा भी ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, अब हम ये टॉपिक को छोड़कर हम दूसरे टॉपिक पे जाते हैं, वरना ये हमारा डिस्कशन चलते रहे। ये एक्चुअली एक नेवर एंडिंग डिबेट है। आशीष जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जो इमर्जेंस ब्रांडेड प्लेयर्स हुआ या चेन स्टोर्स जिसे हम कहते हैं, जो लास्ट 15-20 साल में हुआ है, उसका सबसे बड़ा प्रीमाइस ये था कि मैं आपको जो व्हाट आई सेल इज व्हाट यू गेट, और जैसे अभी नितिन भाई ने कहा व्हाट यू से इज व्हाट यू गेट। मैं अगर कह रहा हूं 916 है तो ये 916 ही, इसमें पॉजिटिव टॉलरेंस ही होगा। अब जब कंपलसरी हॉलमार्किंग आ जाती है, इफ एट ऑल व्हेनेवर इट कम्स इन, इज दैट एडवांटेज दैट branded players or chain store had vis-a-vis a smaller or a medium-sized player will eventually go? मुझे नहीं लगता। जैसे हॉलमार्किंग हैज कम इन ऑलमोस्ट 20 years बैक, तब से धीरे धीरे इट हैज पर्कुलेटेड टू फ्रॉम द टॉप ज्वेलर्स टू सेकंड लेवल टू द थर्ड लेवल ऑफ ज्वेलर्स। सो धीरे धीरे ओवर लास्ट 20 years जो प्योरिटी का स्टैंडर्ड हर एक ज्वेलर का था वो उसके हाथ से निकल गया है। That purity platform has gone to BIS. अभी BIS सर्टिफाई करता है। तो अभी क्या हो गया, ऑल ज्वेलर्स, बड़े ब्रांडेड ज्वेलर्स, चेन स्टोर्स और रीजनल ज्वेलर्स, दे हैव टू क्रिएट देयर ओन आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरी। तो ज्वेलरी में क्या नया बना रहे, क्या कलेक्शन ला रहे, क्या उनकी स्पेशलिटी है, उनका कितना जियोग्राफिकल एक्सपांशन है, दैट हैज बिकम देयर सेलिंग पॉइंट रादर देन क्वालिटी। पहले वो था कि बड़े या चेन स्टोर से हमारा क्वालिटी आता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवन स्मॉल ज्वेलर इन अ स्मॉल टाउन, जैसे चेतन भाई बोले, ही आल्सो हैज हॉलमार्किंग। सो हॉलमार्किंग एनएसए एक्चुअली इट हैज बिकम अ लेवल प्लेइंग फील्ड। छोटे से छोटा आदमी बोल सकता है कि मेरे पास भी क्वालिटी है। देन व्हाट डिफरेंशिएट्स अ चेन स्टोर, व्हाट डिफरेंशिएट्स अ ब्रांड इज व्हाट हिज ऑफरिंग इज। वो क्या टाइप का ज्वेलरी बना रहा है, उसका ब्रांडिंग कैसा हो रहा है, उसका पर्सोना कैसा है। सो द क्वालिटी हैज बिकम अ लेवल प्लेइंग फील्ड एंड ईच ज्वेलर हैज टू क्रिएट हिज ओन ज्वेलरी, ईच ज्वेलर हैज टू क्रिएट हिज ओन डिजाइन्स, हिज इंडिविजुअल स्पेशलिटी फॉर हिम टू सेल। Okay. James sir, I want to come to you. We've got so many jewelers in this country, but as we said, only 23,000 jewelers have got BIS license. Now, if a jeweler wants to sell hallmark gold jewelry, why does he require a license? See, the requirement of a license is to establish traceability. Right. Because every jeweler has to, if you look at the 4 logos of the hallmarking scheme,
the one logo is for indicating which jeweler has sold that jewelry. Oh. So BS is allotting one number, maybe AJ, PJ, KJ, like that. We all of us know that there are thousands of AJ, KJ, PJ in the country. That if one jewelry article is having AJ, KJ, or PJ, we cannot distinguish that jewelry article from which jeweler it has been sold. So it is for establishing traceability that all jewelers shall register with the. It is not license actually. It is a registration. All jewelers shall register with the BAS. At the time of registration, BAS will allot a 3-digit alphanumeric. It's mostly alphabet at the moment. When the number goes up, it has to be alphanumeric. So 3 alphabet code for each jeweler. Based on that code, suppose something is sold in Chennai, it may go to Mumbai. So the complaint will arise, will be filed in Mumbai. So the Mumbai fellow has to locate which jewelry shop has sold it. So it is for establishing the traceability. Oh. Similarly, for all the 1,000 hallmarking centers, there is a specific logo. By looking at the logo, we can find out which hallmarking center has not done the job properly. He'll be penalized. But So it is only for the traceability. No, for traceability purpose that BS is requiring the registration. Number 2, BS is going for market sample purchase. So they look at the license, like in a city like Nagpur, they look at the number of people registered. There are 40 people. The BS officer will go to those 40 specific shops. So it is for this type of monitoring and sample purchases, traceability for the consumer, solving consumer complaints, that this registration process there. But no, I understand your point. But when we travel across the country and meet a lot of jewelers, there is still a lot of lack of awareness about how to go ahead, what is the process. Because today what is happening is that BIS has done a lot of work towards creating a consumer awareness, but the trade awareness is still lower. A lot of people ask us that how do you get registered? Isn't that a big problem? The BIS is conducting jewelers awareness programs in many states. I think in each of the states they have done around 5 or 10 seminars in the past 10-15 years, because every year, every alternate location they keep on going. Like in Kerala, we have 14 districts. BIS has conducted training programs in all the 14 districts, but in bigger states it may not be possible. So jewelers is more than happy if the jewelry associations are arranging the audience and the venue, like meeting room and all that. BS and in IAC, Association of Hallmarking Centers, we are happy to go there, conduct an awareness program, and on the spot, across the table, registration also is possible at the immediately. So that facility is there. It is up to the jewelry associations to demand to the BS to conduct such awareness programs. It takes around 2 to 3 hours time. Normally, it starts at 6 o'clock in the evening, ends up at 8 o'clock with the dinner. So there you can clear all your doubts. You can do on-the-spot registration and all that. It is now online registration. You don't have to physically go to the BS office. Right. And of course, there are consultants. There are consultants who are charging around 3,000 to 5,000 rupees for getting a BS license. Yeah. As far as hallmarking centers are there, we do the job voluntarily because we are getting one more customer. Yeah. So all hallmarking centers always publish it. Please, if you want license, please come to us. We'll help you because we are going to get one more consumer. So that should not be a problem. The number is limited to 30,000 out of the 3 lakh. Not because of what I feel is that not because of awareness, but because of motivation, lack of motivation, or what you call practical problems of going to the hallmarking center. So many issues. Okay. The mandatory exam, initially there will be these hiccups will continue, but it will be sorted out in another 6 months' time. That is what I believe. अब चेतन भाई, मैं अगर आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं तो एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है हमको, सुना जाता है कि फेक स्टैंपिंग है, फेक हॉलमार्किंग है. चेतन भाई नहीं अलाइन. Then James sir, I'll come this to you, and Ashish sir, आप दोनों से ये सवाल पूछना चाहूंगा. One of the problem which has always been there is fake hallmarking, fake stamping. James sir, fake bars are available in the market. What is the BIS doing? What is the Hallmarking Association doing? And what is the Jewelry Association doing in order to address this big menace which is there in the industry? James sir, if you could start, and then Ashish bhai. Yeah. Let me first talk about the type of fake hallmarking. Like one is a proper hallmarking takes around 4 hours time. You take the sample, you do the testing and all that. In some of the hallmarking, out of commercial pressure, centers are bypassing all these standards and they do the hallmarking in 5-10 minutes, probably after checking the item with XRF or may not be checking it. So we call it fake hallmarking. And in these cases, instead of the 4 hallmarking, these hallmarking center will put only 3 marks. Because if the 4th mark of the center is there, he'll get caught. So such fake hallmarking normally carries 3 logos only.
and fourth also may be there without botheration. And if you look at the XRF, if you do the checking with the XRF machine, you get near around 91%. वो चलेगा तो ठीक है. So that is one type of fake hallmarking. Then in many manufacturing cities like Coimbatore or Madurai, people have installed Chinese-made laser machines. You invest around 3-4 lakhs rupees in your what you call yellow coloring or your small workshop. Then you do the marking. They charge around 5 rupees. So they duplicate all these 4 logos. The logos may not be exactly matching, but see, the logos are marked in such a small manner that it is not physically, it is not practically possible for a consumer to distinguish whether it is genuine or not. The size of the logo is 0.5 mm to 2 mm. It is deliberately kept to that small size to avoid any duplication by a third party. If it is made very big, anybody can copy it. So practically speaking, without using a lens, which is available in all the shops, a consumer cannot identify whether it's a genuine or fake hallmarking. So because of for the same reason, these hallmarking centers or laser machine walas, they'll simply put any for ABCD, some marking. The customer will simply log in, "Arey, there are black marque, 4 marque, hallmarking is there." So many jewelers are also doing it. Many jewelers who have not taken BIS license, I mean, those with, not in the 30,000 list, they will go to these type of workshops, or they will even go to the hallmarking center also, and they'll simply demand, "Arey, isme 4 mark dal do," some mark. So because there is because there is a lack of awareness on what exactly is the 4 hallmark logos, jewelers and the hallmarking centers and the workers and the suppliers, manufacturers, everybody, the easiest practice is to put some 4 logos into the thing. Sure. So the only solution for this is to have and there is no traceability. You cannot identify, you cannot find out who is doing it. So the BS is working on a digital scheme to tackle it. I will, since we've got just last 15 minutes left, I'll just take some, audience questions which have come, and I would request all my panelists to keep answers a bit Chirag short. bhai, Yes. just to Yeah, reply to your please. question in short, I'll keep it short. No jeweler will do, no retailer, so to say, will do fake hallmarking because his mark is going to be there on the jewelry. It is easily traceable. Yeah. The fake hallmarking happens at the manufacturer and wholesaler or in the conjunction with the hallmarking center. So there are few precautions that a retailer has to take. Is he has to purchase from his regular supplier, not be duped or look for a cheap supplier, so to say, and randomly keep checking his jewelry that comes in for regularly for purity, and do not let your manufacturer wholesaler directly send for hallmarking. Yeah. Let all the pieces go from the jeweler to the hallmarking center, so that it is not clear who has supplied, and so that there is no relation between the 2 parties. Thanks. Chetan bhai, actually, I this question was to you, but I think you dropped out. I'm sorry, there was some connection problem, so No extremely worries. sorry for that. So there is another question which I wanted to ask you specifically is, when we travel across the country and we meet many hallmarking, companies, they say us that there is massive amount of undercutting which is happening. ये दूसरा आके बोल देता है मैं 10 रुपए में कर देता हूँ, मैं 15 रुपए में कर देता हूँ, and genuine hallmarkers who are there are facing problem. As an association, along with BIS, what is it that you all are doing? If you could keep your answers short and maybe quick, then we can take some audience questions. Yeah, basically undercutting is itself, I would say, comes under the category of fake hallmarking or malpractices, basically. Because what we are representatives of BIS, where BIS shares the royalty. 10% royalty is given out of the 35 rupees to BIS because we are using the BIS logo on it. Yeah. So now our focus is like now, since the time has evolved, the technology has evolved, our focus is only on the UID scheme. Now there are many wrong notions which are floating around UID schemes. जो बाबा आदम के जमाने के लोग हैं वो पता नहीं क्या एक दिमाग में नोशन लगा के बैठे कि UID आने से बहुत लफड़ा हो जाएगा. In short, I will tell you, because I was handling the UID scheme. I was in coordination with Indian Institute of Technology Mumbai, and I used to take care of that part. So basically कैसा है कि UID में आपका ज्वेलरी का each and every jewelry would be a distinct jewelry which would be traceable
फॉर द कंज्यूमर। क्या कंज्यूमर आज उसको जानना चाहता है कि ये प्रॉपर हॉलमार्क हुआ है, प्रॉपर लाइसेंस ज्वेलर से बना है, तो उसका एक 8 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड आएगा जो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, बीआईएस के साइट पे उनके सर्वर पे उसका डेटा रहेगा। अब कैसा है कि वो हमारे लिए ज्यादा पेनफुल क्यों हो गया है, क्योंकि हमको अभी ईच एंड एवरी स्टेप जो हम लोग कर रहे थे उसको और भी ध्यान से करना पड़ेगा, बिकॉज एवरी स्टेप ऑफ अस विल बी रिकॉर्डेड बाय बीआईएस। अभी बीआईएस का सर्वेलेंस नहीं जरूरत पड़ेगा, और ये भी, और ज्वेलर भी अश्योर रहेगा कि हाँ उनका काम एकदम सही तरीके से हो रहा है। एज आशीष पेटे सर सेड, जो क्वालिटी ज्वेलर्स है, जो रिटेल आउटलेट्स है, जो चेन शॉप्स है, उनको अपनी गुडविल की सबसे ज्यादा फिक्र है, और उनके लिए करेंगे वो, तो वो नहीं चाहेंगे कि कोई गलत काम हो बेसिकली। तो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर दीज टाइप ऑफ ज्वेलर्स हु वांट टू डू क्वालिटी वर्क। हाँ, अभी बहुत सारी एक प्रैक्टिकल इश्यूज ऐसे आती है कि एक चेन का साइज है, कस्टमर मेरे शॉप में आ जाता है कि भाई मेरे को इसका साइज छोटा करके दो। तो बेसिकली इट्स अ सिंपल थिंग कि अगर आप टेक्नोलॉजिकली देखो, आप अगर कोई चीज यूज कर रहे हो, आपका एक 8 डिजिट कोड जनरेट हो गया, बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ कि उसका 8 डिजिट कोड जनरेट हो गया। अभी उसका कोई अमेंडमेंट होता है तो आपको कभी भी अपडेट्स आते हैं सॉफ्टवेयर के या उस टाइप के, तो इट कैन ऑलवेज बी वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3। तो इट कैन ऑलवेज बी रिकॉर्डेड बाय टेक्नोलॉजी। ऐसा नहीं कि वो कोई इसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है या ऐसा कुछ चीज होने वाला है, जो एक मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग ज्वेलर्स के बीच में घूम रही है कि क्या होगा अगर रीसाइजिंग हो गया। तो रीसाइजिंग होगा तो उसका टेक्नोलॉजी में आपको इनपुट करना है, इसका चेंज तो हो ही सकता है वो चीज। आधार में अगर आपका एड्रेस चेंज होता है, तो आज 130 करोड़ में से कम 80% लोगों के पास आधार कार्ड है, तो उनका क्या एड्रेस चेंज नहीं होता है हर साल, तो वो चेंज नहीं होता है। वो देखिए, वो बात सही है, और एक यूआईडी पूरा ही अलग टॉपिक है। हम एक्चुअली उसके ऊपर यूआईडी के ऊपर एक वापस सॉरी, बेसिकली हाँ, नाउ आई एम कमिंग टू योर सब्जेक्ट व्हिच इज लाइक, हेलो, हाँ, प्लीज या if you could answer quickly, because there are a couple of audience questions that if I want to go to. it was regarding, I'm sorry, it was like So I'll come to other questions. yeah, I missed the Yeah, voice that's basically, right. yeah. नितिन भाई और आशीष सर, ये एक सवाल है जो ऑडियंस ने पूछा है। एक चीज ये है कि क्या ज्वेलर्स ने अपने जो नॉन हॉलमार्क स्टॉक था है उसको क्या रिड्यूस करना शुरू कर दिया है? और दूसरी बात, जिस कंज्यूमर के पास नॉन हॉलमार्क स्टॉक है 21 कैरेट, 23 कैरेट, 24 कैरेट, जब वो बेचने को आएगा, क्या उसको प्राइस के अंदर नुकसान होगा? अगर आप संक्षेप में दोनों, किसी भी ज्वेलर्स ने हिंदुस्तान के अंदर हॉलमार्किंग को लेके अपना स्टॉक रिड्यूस करना शुरू नहीं किया है। पॉइंट नंबर 1, क्योंकि उसके हाथ में नहीं है। जो माल, जो पोल्की कुंदन जड़तन है, उसका होलसेलर के पास में 8-8 दिन उसका फोन का बिल भी नहीं आ रहा उसके पास में, नॉट अ सिंगल डिमांड अक्रॉस द इंडिया। तो उसका माल पुश नहीं हो रहा, वो 1 साल तक के, तो और क्या, और 1-1.5 साल नहीं होता, क्योंकि पैंडेमिक जब तक खत्म नहीं होता, कोविड के सिचुएशन में तो डिमांड कंप्लीट गायब होता ही नहीं है। अभी जो माल 24 कैरेट है, 23 कैरेट है, अगर हम उसको ला नहीं सके तो वो माल मेल्ट करना हमारे बड़ी बात नहीं, क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारी 1.5-2% है। तो और जो बड़ा माल है 25 लाख 40, आई थिंक वी लॉस्ट नितिन भाई। आशीष भाई, अगर आप इस चीज के ऊपर बता सके तो। People have not started reducing because the sales are not happening. 5 महीने से सब बंद पड़ा हुआ है। लेकिन एक दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि जो 23 और 24 कैरेट हॉलमार्क किया हुआ बिफोर इट वाज बैंड, people are sitting with those hallmarked items. What about that? Whether we are allowed to sell even after the mandatory regime comes in? That is one factor. अगर यूआईडी आ गया तो मैं पहला पर्सन रहूंगा, मैं घबराता नहीं हूं, मैं बहुत ऑर्गेनाइज प्लेयर, और मेरी शोरूम जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट रन कंपनी है। तो सबसे पहले तो मुझे जो एक्साइज का 40 दिन का स्ट्राइक दिख रहा है, उससे भी बड़ा कियोस्क दिख रहा है पूरे इंडिया के अंदर। यूआईडी अगर आता है नितिन भाई, यूआईडी के ऊपर सर, हम यूआईडी के ऊपर एक अलग बात ही नहीं करना है। यूआईडी पे इट्स नॉट गोइंग टू हैपन एट ऑल। नहीं नितिन भाई, यूआईडी के ऊपर हम अलग सेशन रखेंगे, बट आशीष सर, आप बोल रहे थे वो स्टॉक के बारे में। My another question, tricky question है कि अभी बिकॉज इट इज नॉट लाइक बजाज स्कूटर एक मॉडल का 25 बाइक है, तो जैसे जैसे बिकता है खत्म होएगा। अभी मेरे पास समझो 300, एक शोरूम में 300 नेकलेस है, 300 नेकलेस का हर एक का डिजाइन अलग है। अभी वो एक पर्टिकुलर 232 नंबर का डिजाइन कब बिकेगा, नो नोस। उसमें भी मेरा वॉकिंग 10-20 टका पे है, तो ये कंज्यूम होने में बहुत टाइम लगेगा। आशीष भाई, ये सब people are being careful while building the fresh stock. Yes, what you're saying is correct. जब नया स्टॉक भर रहे हैं उसमें they are being careful कि वो हॉलमार्क के ले रहे हैं। That awareness has kicked in, but because of the market situation and corona, it is going to take much longer.
So we have requested the government for further 6 months extension to January 2022. चेतन भाई, आशीष भाई रेज अ वेरी वैलिड पॉइंट. मेरे पास हॉलमार्क ज्वेलरी है 23 कैरेट की, 24 कैरेट की, जो बिकी नहीं है, और वो हॉलमार्किंग रिजीम आने से पहले मेरे पास है. तो आप ये चीज को रेट्रोस्पेक्टिव तो डाल नहीं सकते ना. Basically, as a chartered accountant, I would reply this answer. कैसा होता है कि आपका इट्स अ रिवोल्यूशनरी थिंग विच इज हैपनिंग. ये कोई चीज आ रही है कंपलसरी हॉलमार्किंग, जैसे कि जीएसटी वाज अ बिग रेवोल्यूशन फॉर इंडिया. तो जैसे जैसे कोई चीज आएगी, कोई प्रॉब्लम्स आएगी, तो उसका क्लैरिफिकेशंस भी आते रहेगा. ऐसा नहीं है कि उसका क्लैरिफिकेशन नहीं आएगा. या देयर विल बी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, जैसे जीएसटी में आई है. आज भी हम लोग बोल नहीं सकते कि वी आर टोटली सेटल्ड ऑन जीएसटी. सेम वे इट वुड बी अ रनिंग, इट वुड बी अ ऑनगोइंग प्रोसेस. सो आई थिंक इट विल टेक केयर ऑफ एनीथिंग. टाइम विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, आई थिंक. जेम्स सर, चिराग भाई, यस यस, एक जीएसटी का उन्होंने रेफरेंस दिया. सो दैट इज व्हाट वी हैव सजेस्टेड टू द गवर्नमेंट आल्सो एंड बीआईएस, कि जैसे जीएसटी अपने इंडस्ट्री फ्रेंडली फॉर्म में लाए थे, वैसे ही मैंडेटरी हॉलमार्किंग इंडस्ट्री मैं फ्रेंडली फॉर्म एक्चुअली में वही सवाल पूछने वाला था. कि एट द पॉइंट ऑफ सेल आप हॉलमार्किंग करो ना. हाँ हाँ हाँ. एट द पॉइंट ऑफ सेल द आइटम हैज टू बी हॉलमार्क, ऐसा कहेंगे तो देन धीरे धीरे, वो भी इमीडिएटली नहीं होगा, बट धीरे धीरे इंडस्ट्री कैन कम अराउंड. James sir, that was a question to you, that the way GST has got slabs, exemption limits, such a friendly policy, why is there no exemption limit on hallmarking, saying that, X jeweler under this, if it falls into this slab, he needs to do this. If he's got a certain amount of sales, there has to be certain amount of exemption. What is the logic behind bringing this compulsory, such a swift form? See, the hallmarking rules is exempting below 2 gram items from the purview of mandatory hallmarking. So if you look at small villages, all these rings, eardrops, and all these small items, a shop owner having around 5 kilo stock, it will be less than 2 gram items. So very small jewelers, micro jewelers, will be, by nature of their stock, will be exempted from the purview of mandatory hallmarking. That should not be a problem for them. No, but sir, 2 gram in a chain you will not get in 2 gram, or a bangle you will not get in 2 gram, right? Even in I differ on that. The law states that you cannot even store and sell and transport any jewelry. उसमें exemption 2 ग्राम का है, लेकिन अगर मुझे ज्वेलरी बिजनेस करना है तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा. That is the meaning of mandatory. Yeah, that's what I can keep items which are under 2 grams, which is need not be hallmark. But अगर मुझे बोर्ड लगा के ज्वेलरी का बिजनेस करना है, तो I have to have mandatory license. Okay, so one last question to Chetan Bhai, and then we'll have to close. I'm getting messages to close the session. Chetan Bhai, एक चीज की सवाल है कि हॉलमार्किंग जो सेंटर है, ये कैसे रजिस्टर कर सकते हैं? किसी को हॉलमार्किंग सेंटर चालू करना हो, कैसे कर सकते हैं? और दूसरी चीज, क्या ये सही है कि आज भी काफी हॉलमार्किंग सेंटर्स है, ये बीआईएस का जो प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं कर रहे? बहुत ही संक्षेप में अगर आप इसका आंसर दे सके. सर, आई वुड नॉट डिनाई एनी ऑफ योर फैक्ट्स. इसके लिए हम लोग यूआईडी के पीछे पड़े कि दैट विल टेक केयर, दैट टेक्नोलॉजी इज द ओनली होप व्हिच विल टेक केयर ऑफ ऑल द माइनर गैप्स. अगर कुछ रहेगा या ग्रे एरियाज रहेगा, अगर आपका एक बार यूआईडी आ गया तो आपको वो ऑफ वे जाने ही नहीं देगा कहीं पे भी. बेसिकली बहुत सारे कभी कभी प्रैक्टिकल इश्यूज आते हैं जिसके वजह से शायद समझो 2 कॉर्नेट निकालने हैं कोई, बेसिकली एवरी 60 पीसेस देयर हैज टू बी 1 कॉर्नेट और फायर ऐसे होना चाहिए. अभी कभी कभी कैसे होता है कि एक ही टाइप का 65 पीसेस हो जाते हैं, तो टेक्निकली आई हैव टू रिमूव 2 कॉर्नेट्स. सो कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि थोड़े माइनर ये होते हैं, बट जिस ज्वेलर को पता है कि हॉलमार्किंग का प्रोसीजर क्या है, एंड आई एम श्योर कि ऑल गुड ज्वेलर्स जिनको जेन्युइन अपने कस्टमरों को माल बेचना है, उनको पता है कि हॉलमार्किंग प्रोसेस क्या है. अभी मेरे ही 2-3 कस्टमर है जो लाइक अगर मैं उनको कोऑर्डिनेट नहीं तो तुरंत मेरे को फोन आता है, चेतन यू आर नॉट डूइंग द राइट थिंग, लाइक आई विल डीरजिस्टर यू. सो अगर ज्वेलर्स लोग को ट्रेन कर दिया जाए कि हाँ भाई आप भी थोड़े क्वालिटी कॉन्शियस बनिए, हमको एज अ क्यूसी सेंटर देखे, तो आई थिंक ये प्रॉब्लम्स भी आराम से ठीक हो सकती है. नहीं, बट देखिए, और मैं ये लास्ट खाली पॉइंट कहूंगा कि आप यूआईडी की बात कर रहे हैं, व्हाइल यूआईडी इज अप्रिशिएबल, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्रोबेबली इज द फ्यूचर,
But in a country like India, which is as diverse as you only pointed out, that Ashish ji pointed out, that as diverse as European countries in itself, it is going to take years and years for that kind of education. So I would say while UID could be the future, it is still 5 to 6 years away. So I will just say that and close the session. Thank you very much to all my panelists for having such a riveting debate. Hopefully, we've been able to do some justice to the listeners. Thank you very much, and have a good day. Back to you, MC. Thank you. Thank you everyone.